بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحانات اور یونیورسٹی داخلے امتحانات وغیرہ میں تیاری کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ بی ایس اردو کا مکمل سلیبس ہے۔ تو ہم نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں بی ایس اردو کے مکمل سلیبس کو ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے تمام ممکنہ معروضی سوالات بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں پہلا لیکچر جو تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے بی ایس میں پڑھایا جاتا ہے وہ افسانوی ادب کا پرچہ ہے، اور افسانوی ادب میں سب سے پہلی چیز جو پڑھائی جاتی ہے وہ داستانیں ہیں، اور داستانوں میں دو داستانیں تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے بی ایس سلیبس کا حصہ ہیں، ایک میر امن کی باغ و بہار اور دوسری فسانہ عجائب جو رجب علی بیگ سرور کی تخلیق ہے۔ آج کا لیکچر داستان باغ و بہار اور اس کے مصنف میر امن دہلوی کے حوالے سے ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ میں سے پہلا سوال ہے، میر امن کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1742 عیسوی، 1744 عیسوی، 1746 عیسوی یا 1748؟ تو یہ درست جواب میں نے ٹک کیا ہوا ہے، 1748 عیسوی۔ دوسرا سوال ہے، اردو کی نثری داستانیں، یہ بڑی معروف کتاب ہے داستان کے حوالے سے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سید عبداللہ، سید وقار عظیم، گیان چند جین یا احسن فاروقی؟ تو اس کا درست جواب ہے گیان چند۔ اگلا سوال ہے، میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ کلکتہ کے، دہلی کے، لکھنؤ کے یا بمبئی کے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ دہلی کے ہیں، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، اور یہ جو باغ و بہار ہے یہ اس میں ہمیں دہلوی تہذیب کی نمائندگی یا عکاسی ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی اردو داستان قصہ چہار درویش سے ماخوذ ہے؟ داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب، باغ و بہار یا الف لیلا؟ تو قصہ چہار درویش جو فارسی کی ہے داستان، اس سے ہماری یہ باغ و بہار اسی سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ بھی اسی داستان کی چار درویشوں کی کہانی ہے، چار درویشوں کا قصہ ہے۔ باغ و بہار کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1801، 1802، 1803 یا 1804؟ تو اس کا درست جواب ہے 1804۔ اگلا سوال ہے، ایک اور بڑی معروف کتاب ہے داستانوں اور داستانوں کی تنقید کے حوالے سے، گلکرسٹ اور اس کا عہد۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ سید وقار عظیم، مولوی عبدالحق، عتیق صدیقی اور ڈاکٹر سلیم اختر؟ تو اس سوال کا درست جواب ہے عتیق صدیقی۔ اس طرح کے سوالات بھی کر لیے جاتے ہیں داستان کے متن سے، کہ جیسے پہلے درویش کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو مختلف ممالک نیچے آپشن میں دیے جا سکتے ہیں، عجم، چین، یمن۔ تو یہ اس کا درست جواب ہے یمن، پہلے درویش کا تعلق ملک یمن سے تھا۔ میر امن کا اصل نام کیا تھا؟ یہ ان کا قلمی نام تھا میر امن، تو اور ان کا درست نام ہے میر امان۔ بڑے کم ہمیں ملتے ہیں میر امن کے حالات زندگی، اور ان کی تصانیف بھی ہمیں کوئی دو ایک نظر آتی ہیں، تو زیادہ تر ہمیں نہیں ملتے ان کے حالات زندگی۔ باغ و بہار جو رشید امجد نے ایڈٹ کی ہے کچھ اس میں ملتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، یوسف سوداگر کا کردار کس درویش کے قصہ سے تعلق رکھتا ہے؟ پہلے درویش کے، دوسرے درویش کے، تیسرے درویش کے یا چوتھے درویش کے؟ تو یہ جو یوسف سوداگر کا قصہ ہے یہ پہلے درویش سے تعلق رکھتا ہے۔
अच्छा जी, आगे एक कोटेशन है। आप सवाल है कि ये किसकी कोटेशन है? मैं उर्दू भूलने लगता हूँ तो बागो बहार पढ़ता हूँ। किसका कौल है? सर सैयद, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक या रशीद हसन खान? तो ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है कि मैं उर्दू भूलने लगता हूँ तो बागो बहार पढ़ता हूँ। बागो बहार, ये सवाल अमूमन पूछा जाता है कि बागो बहार में किस तहज़ीब व माशरत की अक्कासी मिलती है। तो ये अभी मैंने बात की कि बागो बहार में जो है वो दिल्ली की तहज़ीब, सकाफ़त जो है ना, और दिल्ली की ख़ास प्योर दिल्ली की जो ज़ुबान है वो हमें इसमें मिलती है बागो बहार में। बागो बहार सिन्फ़ के एतबार से क्या है? नॉवेल, ड्रामा, दास्तान या सफ़रनामा? अच्छा, जो पेपर होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है एक, तो सारे सवाल मुश्किल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल जो हैं वो आसान भी होते हैं और कुछ उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा मीडियम होता है, तो वो हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि बागो बहार की सिन्फ़ क्या है? ये दास्तान है, नॉवेल है, अफ़साना है, ड्रामा है, क्या है? तो अगला सवाल है कि बसरे की शहज़ादी का ताल्लुक किस दरवेश के किस्सा से है? तो बसरे की शहज़ादी जो है, वो दूसरे दरवेश के किस्से से ताल्लुक रखती हैं। जी, अगला 14वाँ सवाल है इसमें एमसीक्यूज़ में कि एक ये भी एक बहुत ही मरूफ कोटेशन है कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब है। किसका कौल है? बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब है। रशीद हसन खान, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला या ज्ञान चंद? तो इसका दुरुस्त जवाब है सैयद अब्दुल्ला। अगला सवाल है, वज़ीरज़ादी किस किस्से की हीरोइन है? पहले दरवेश की, ख्वाजा सरपरस्त की, आज़ाद बख्त और या चौथे दरवेश की? तो वज़ीरज़ादी जो वो मर्दाना लिबास पहनकर और वो अपने वालिद साहब को छुड़ाने के लिए या ख्वाजा सरपरस्त की हकीकत मालूम करने के लिए निकल खड़ी होती है, तो इस किस्से की जो हीरोइन है वो वज़ीरज़ादी है। बागो बहार की तालीफ पर मीर अमन को कितनी रकम बतौर इनाम मिली थी? 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए? तो इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ, यानी 500 रुपए। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? ये दास्तानें सारी जो है ना वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही शाया हुई और आसान ज़ुबान में उन्होंने जो है ना अपने जो ब्यूरोक्रेट आते थे अंग्रेज़, उनको उर्दू सिखाने के लिए और उनको यहाँ के लोगों की तहज़ीब, सकाफ़त और माशरत सिखाने के लिए इनका एक ये प्रोजेक्ट था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में अमल में आया, सन 1800। अगला सवाल है, एक किताब है बड़ी मारूफ, उर्दू ज़ुबान और फ़न्ने दास्तान गोई। ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये किताब कलीमुद्दीन अ, है। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद है, इसमें जो है ना वो थोड़ी-सी वो प्रूफ की गलती है। अच्छा जी, 19वाँ सवाल है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मुकाम हासिल है जो मीर को उर्दू शायरी में। ये भी बड़ा मारूफ कौल है मीर अमन और बागो बहार के हवाले से कि मीर अमन को उर्दू दास्तान में वही मुकाम हासिल है जो मीर को उर्दू शायरी में। ये किसका कौल है? अली का, सर सैयद का, रशीद हसन खान का या मौलवी अब्दुल हक का? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलवी अब्दुल हक। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी से बहैसियत मुंशी कब वाबस्ता हुए? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1801। इन्होंने मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन किया था बहैसियत मुंशी 1801 में। बागो बहार को जदीद उर्दू नस्र का पहला सहीफ़ा किसने कहा?
ये भी बड़ा मरूफ कौल है कि उन्होंने जदीद उर्दू नस्र का पहला सहीफ़ा बागो बहार को किस मरूफ नक़ाद ने कहा? तो ये रशीद हसन खान साहब ने ये कहा, जो उर्दू तदवीन और तहकीक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। अगला सवाल है कि मीर अमन किस सन में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाज़मत से सुबकदोश हुए? तो ये 1806 तक जो है ना वो वाबस्ता रहे हैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से। 1806 में इन्होंने खैर बात कह दिया था। बागो बहार कब मुकम्मल हुई? तो ये 1217 हिजरी में। इसी से जो है ना इसका तारीख़ी नाम भी निकलता है, इसको हम अदद में ढालें तो वो बागो बहार बनता है फिर। अच्छा जी, कुछ सवालात अब जो है ना वो खाली जगह की सूरत में होंगे और कुछ मुख्तसर जवाबात की सूरत में भी होंगे। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी से कुछ मुल्हिका कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बीएस और एमए होता है, वहाँ पे जो पेपर है उनका, उसमें सिर्फ़ एमसीक्यूज़ नहीं होते, उसमें खाली जगह भी होती है और उसमें ये शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं। तो ये उन तमाम लोगों की तैयारी के लिए है कि अगर मुख्तसर सवाल बन सकते हैं, तो वो किस तरह बन सकते हैं। तो अब कुछ मुख्तसर सवाल खाली जगह पुर कीजिए कि मीर अमन डैश कॉलेज से वाबस्ता रहे। आगे ब्रैकेट में ये जवाब दिए गए हैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से। इसके बाद गंज खूबी, ये भी मीर अमन ही की तसनीफ़ है, ये दूसरी किताब है हमें जो इनकी मिलती है बागो बहार के अलावा। तो बागो बहा गंज खूबी के मुसन्निफ़ कौन थे? तो मीर अमन। किताब मीर अमन से अब्दुल हक तक, ये भी बड़ी मरूफ किताब है, दास्तान के हवाले से और मीर अमन के हवाले से। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। मीर अमन डैश तखल्लुस करते थे। तो मीर अमन शायरी भी करते थे और लुत्फ़ तखल्लुस करते थे। बागो बहार के पहले एडिशन का इंतसाब डैश के नाम है। तो ये जेम्स मौत एक उस वक़्त जो है ना एक अंग्रेज़, ये उनके नाम उनका जो है ना वो इंतसाब है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। अच्छा, ये भी पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट नहीं है। ये जो है ना ये हिंदुस्तानी शोभा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये गलतफ़हमी होती है। जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं, ये इसके हिंदुस्तानी शोभा के सदर थे, इसके प्रिंसिपल नहीं थे। इसको मैं दुरुस्त करती हूँ यहाँ पे। तो ये सवालात मैंने कंपोज़ करवाए हैं किसी से, लेकिन शायद प्रूफ़ अच्छे से नहीं पढ़ा गया, तो कहीं-कहीं कोई ना कोई गलती अभी नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि तीसरे दरवेश का ताल्लुक मुल्क डैश से था। तो तीसरे दरवेश का ताल्लुक अजम से था। अच्छा जी, इन चारों दरवेशों के किस्से को डैश का किस्सा जोड़ता है। किसका किस्सा इन चारों दरवेशों के किस्से को जोड़ता है? तो वो बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा है, जिससे इन चारों दरवेशों की कहानी फिर लिंक होती है। चौथा दरवेश डैश के बादशाह का वलीअहद था। तो ये चीन का वलीअहद था, जो चौथा दरवेश था। अच्छा जी, एक और दास्तानों के हवाले से बड़ी अहम किताब है हमारी दास्तानें। इसके मुसन्निफ़ डैश हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद वक़ार अज़ीम। उर्दू में जो दास्तानों के हवाले से हमें तनकीद मिलती है, तो जो इब्तदाई लोग हैं कोई तनकीद करने वाले, तो उनमें सैयद वक़ार अज़ीम साहब का नाम जो है ना, वो बड़ा मोतबर है। बाद-ए-ज़ां बहुत सारे लोगों ने, ज्ञानचंद ने या और भी लोगों ने इस पे, सलीम अख्तर ने दास्तानों पे तनकीद की, डॉक्टर सुहेल अहमद खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर वाले। लेकिन जो इब्तदाई नाम है दास्तान या उसकी तनकीद और तहकीक के हवाले से, तो वो सैयद वक़ार अज़ीम ही का है। अगला सवाल है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक बागो बहार का पहला नाम क्या है? फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक। तो इसका पहला नाम जो था चार दरवेश है।
बागो बहार दास्तान का डैश नाम भी है, डैश इसका जो तारीखी नाम भी है। जब हम उसको हरूफ की शक्ल में लिखें तो वो बागो बहार ही बनता है। बागो बहार के पहले एडिशन का पेश लफ्ज़ डैश ज़ुबान में लिखा गया है। तो जो इसका पहला एडिशन बागो बहार का शाया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज से, उसका पेश लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा गया है। बागो बहार को मारूफ मुस्तशरिक यानी ओरिएंटलिस्ट ने डैश ने भी मुरतब किया। ओरिएंटलिस्ट वो मगरबी जो मशरकी लिटरेचर पे काम करे, वो मगरिब से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको हम मुस्तशरिक या ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। तो ये डंकन फॉर्बिस एक बड़ा अहम नाम है, तो इन्होंने भी इस पे बागो बहार को मुरतब किया है। तवालत सिन्फ़ डैश का बुनियादी जुज़ है। तवालत जो है ना, ज़खामत या तवालत, तो किस सिन्फ़ का बुनियादी जुज़्व है? तो नीचे ऑप्शंस भी हो सकती हैं, या अगर खाली जगह है तो ज़ाहिर है तवालत दास्तान के साथ मंसूब है। दास्तानें तवील होती हैं, किस्सा दर किस्सा होती हैं, हज़ारों सफ़हात पे मुश्तमिल होती हैं। तो तवालत जो नसरी जितनी भी असनाफ़ हैं, उनमें तवील सबसे दास्तान ही है। अच्छा जी, एक किताब है उर्दू दास्तान, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? अभी मैंने ज़िक्र किया डॉक्टर सुहेल साहब का, सुहेल बुखारी, सुहेल अहमद खान हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में भी सदर शोबा उर्दू रहे हैं। अच्छा जी, आगे एक कॉल है कि बागो बहार पाकीज़ा और शफ़ाफ़ उर्दू का उबलता हुआ चश्मा है। ये किसका कॉल है? प्रोफ़ेसर हमीद अहमद खान का ये कॉल है बागो बहार के हवाले से। अगला सवाल है कि मीर अमन डैश के तवसत से गवर्नमेंट फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए। तो मीर बहादुर अली हुसैनी जो वहाँ पे पहले मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, उन्हीं की वसातत से और उन्हीं की सिफ़ारिश पे ये मीर अमन जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए। अगला सवाल है कि दारोगा बेहज़ाद किस दरवेश के किस्से से ताल्लुक़ रखता है? तो ये तीसरे दरवेश के किस्से से इसका ताल्लुक़ है, दारोगा बेहज़ाद का। माशरे की मुरक्का नगारी बागो बहार का तुर्रा इम्तियाज़ है। माशरे की मुरक्का नगारी बागो बहार का तुर्रा इम्तियाज़ है, ये किसका कौल है? तो ये ज्ञानचंद जैन जो उर्दू दास्तान के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, ये उनका कौल है। आगे मुख्तसर जवाबात हैं, मुख्तसर जवाब दीजिए। बागो बहार किसकी फ़रमाइश पर तहरीर की गई? तो ये जॉन गिलक्रिस्ट की फ़रमाइश पे तहरीर की गई। अच्छा जी, ये बागो बहार ये मीर अमन की जो दूसरी किताब है गंजे खूबी, ये किस किताब का तर्जुमा है? तो ये किताब है अखलाके मुस्ना, ये उसका तर्जुमा है। किताब है दास्तान से अफ़साने तक, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके मुसन्निफ़ भी सैयद वक़ार अज़ीम, उर्दू दास्तान और उसकी तनकीद के हवाले से पहला बड़ा नाम। फोर्ट विलियम कॉलेज के मतबा का क्या नाम था? यहाँ यहाँ से किताबें भी शाया होती थी। ये ना सिर्फ़ वहाँ से किताबें लिखवाते थे बल्कि शाया भी होती थी। तो इनके प्रेस का नाम था हिंदुस्तानी प्रेस। हातिम ताई किस दरवेश का आइडियल था? एक दरवेश की कहानी में है ना कि वो हातिम ताई से बड़ा मुतासिर होता है, तो वो कौन-सा दरवेश था? तो वो दूसरा दरवेश था जो हातिम ताई जिसका आइडियल था। मलक मलक सादिक का किस्सा किस दरवेश से मुतल्लिक है? तो ये जो है वो जिन्नों का बादशाह मलक सादिक, इसका चौथे दरवेश से ताल्लुक है। अगला सवाल है, अब ये मुझे जगह का नाम दुरुस्त नहीं लग रहा कि मज़ंग की शहज़ादी किस किस्से की हीरोइन है? ये तीसरे दरवेश की हीरोइन है। बागो बहार के पहले एडिशन का पेश लफ्ज़ किसने तहरीर किया? इसका पेश लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में था, ये तहरीर किया था जॉन गिलक्रिस्ट ने। अगला सवाल है, बागो बहार एक तज्ज़िया किसकी तसनीफ़ है? तो ये डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब की तसनीफ़ है। माफ़ोकुल फ़ितरत अनासर किस नस्री सिन्फ़ का लाज़मी हिस्सा हैं? तो माफ़ोकुल फ़ितरत
अनासर जो है वो दास्तान में होते हैं, जिन, परियाँ, शहज़ादे, शहज़ादियाँ या किसी तोते में किसी की जान, ये सारी दास्तानों का हिस्सा हैं। बागो बहार के तूफ़ानी किरदारों में किसकी वजह शोहरत सखावत थी? तो ये बसरे की शहज़ादी थी, जिसका किस्सा सुन के फिर बादशाह उसकी तलाश में निकलता है कि वो तो हातिम ताई से भी ज़्यादा जो है ना वो सखावत करती है। अच्छा जी, अगला सवाल है, मीर अमन ने बागो बहार के मुकद्दमा में खुद को क्या कहा? इन्होंने खुद को दिल्ली का रोड़ा कहा कि मैंने इसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो ख़ालिस दिल्ली ज़ुबान, दिल्ली के जो है ना वो जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे जो इस्तेमाल होती है वो ज़ुबान है। अगला सवाल है, लफ्ज़ को इसके सही मफ़हूम में ठीक मौका पर इस्तेमाल करना असल इंशा पर्दाज़ी है और इसमें मीर अमन को बड़ा कमाल हासिल है। ये किसका कौल है? ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है। हमारा ये जो है ना वो थोड़ा-सा वक़्त रह गया है मीटिंग में, कोई 10 मिनट से कम, इसलिए मैं ज़रा इसको अब तेज़ी से ये जो सवालात हैं तो पढ़ देती हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद तो था ना वो अंग्रेज़ अफ़सरान जो हैं उनको हिंदुस्तानी ज़ुबानें सिखाना और हिंदुस्तानी तहज़ीब व माशरत से आगाही देना था। अगला सवाल है, चारों दरवेशों को कौन नकाबपोश खुदकुशी से रोकता है? ये चारों खुदकुशी करने लगते हैं तो कोई ना कोई इन्हें जो है ना वो आके रोकता है, तो वो हज़रत अली करमल्ला वजहू उनको जो है ना वो खुदकुशी करने से रोकते हैं। उन्हें कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे जाएँ तो अपनी मुराद को पाएँगे। इस तरह से ये किस्सा है। ख्वाजा सरपरस्त ने पिंजरे में किन लोगों को कैद कर रखा होता है? उसने कुत्तों को तो जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से रखा होता है, उनके गले में हीरे जवाहरात डाल के, लेकिन अपने भाइयों को जो है ना वो पिंजरे में, यानी जो कुत्तों वाला पिंजरा होता है, उसमें कैद किया होता है। अच्छा जी, जिन्नों के बादशाह का क्या नाम था इस दास्तान में? तो जिन्नों के बादशाह का नाम मलक सादिक था। किसकी मदद से चारों दरवेश की मुरादें पूरी हुईं? किस किरदार की मदद से जो है ना वो चारों दरवेश अपनी मुराद को पहुँचे? ये मलिक शहपाल था। मलिक शहपाल था कौन? इसका करैक्टर क्या था? तो ये शाह परस्तान था। एक और सवाल है कि बिलाशुबा मीर अमन ने वही नस्र ईजाद की है जिसके जुमले आज मिस्री की डलियाँ और शरबत के घूँट हैं। किसका कौल है? यानी इतनी मीठी ज़ुबान लिखी है। तो ये प्रोफ़ेसर अहमद फ़ारूकी साहब का कौल है। बागो बहार का पहला तनकीदी एडिशन किसने मुरत्तब किया? तो ये रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है इसका पहला तनकीदी एडिशन। रशीद हसन खान की मुरतबा बागो बहार कब शाया हुई? तो ये 1964 में शाया हुई। अगले लेक्चर में रजब अली बेग सरूर और फसाना अजायब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तब तक इजाज़त, बेहद शुक्रिया।